السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنی پاک کلام کے لیے توفیق عطا فرمائی، جس نے ہمیں ہمارے دین اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص اور خاص مدد سے نوازے کہ ہم اس دین کے سلسلے کو اگر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہماری چھوٹی چھوٹی یہ جو کوششیں ہیں کاوشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کی منزلوں پہ لے کے چلے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ترقیاں عطا فرمائے۔ اب دیکھیں، یہ ہے اییا اور یہ ہے کا۔ اییا کا مطلب کیا ہے؟ صرف اور صرف۔ آگے کا مطلب کیا ہے؟ تیری۔ اییا کا صرف اور صرف تیری، یعنی خاص اور خاص تیری۔ تیری یعنی جو ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت۔ اییا خاص، کا تیری، یعنی تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اب کیا ہے آگے؟ نعبدو۔ نون کا مطلب ہم، نون متکلم کے لیے ہم، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ اییا صرف اور صرف، کا تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب عبد کا مطلب کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو، ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا کہ نعبدو ہم تیری غلامی کرتے ہیں۔ غلامی میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ غلامی میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ عبد کیا ہے؟ غلام، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا مقام رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مالک کا مقام رکھتے ہیں۔ وہ ہمارے مالک ہیں، وہ ہمارے رب ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، ہمارا خالق ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے یعنی عابد یعنی عبادت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کو بھی اپنا رب نہیں مانتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جب ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد، خاص تیری ہی، صرف اور صرف تیری ہی ہمیں عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا ہم واقعی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے نفس کی تو نہیں پوجا کرتے، کہیں ہم اپنے نفس کی تو نہیں مانتے؟ تو کیا تھا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ میں افرأیت، کیا میرے محبوب آپ نے دیکھا اس بندے کو جس نے اپنے ہی نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ ہم نے کہتے ہیں، ہم جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ابھی یہ کام کرنا ہے، ہم یہ کام کر لیں، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کو اگنور کر رہے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اگنور کر رہے ہیں، ہم کس کو ویلیو دے رہے ہیں، کس کو عزت دے رہے ہیں، کس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں بھی میرا کام ضروری ہے، ہم نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ہم یہ والا کام جو ہے یہ بعد میں کر لیں گے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنا کام کرنا ہے۔ تو جان لیجئے پھر ایاک نعبد کا جو مقصد ہے نا وہ یعنی بہت کمزور دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اگر صرف اور صرف خاص اللہ کی عبادت کرتے ہیں پھر تو ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے، اللہ تعالیٰ کو طاقتور سمجھتے، اور پہلے اللہ تعالیٰ کا کام کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتے، اس کے مطابق زندگی گزارتے، باقی بعد میں سارے کام ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں ایاک نعبد کو سوچ کے پڑھنا ہے کہ واقعی ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب دیکھو ہماری نماز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ
कानत अलल मुमिनीन मुमिनीन किताबन मौक़ूता। बेशक नमाज जो है ना अल्लाह ताला ने मोमिनों पर कब फ़र्ज की है? उसके वक़्त पे फ़र्ज की है। और नमाज का बेहतरीन वक़्त क्या है? पहला वक़्त है। हम नमाज को उसके पहले वक़्त पे नहीं पढ़ते हैं। हम कहते हैं मैं पहले ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, नमाज लेट होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, हत्ता कि नमाज अपने आखिरी यानी सांसों पे आ जाती है। उसका वक़्त जो है वो आखिरी सांसों पे आ जाता है। बिल्कुल आप देखते हैं ये तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्या अब मैं नमाज पढ़ लूँ? भाई हमने अगर अल्लाह ताला को वैल्यू दी होती, अल्लाह ताला को कोई मुकाम दिया होता, कोई अहमियत दी होती, हम कभी भी ऐसे ना करते। ठीक है। अब इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह जो हम इय्याका नअबुदु कह रहे हैं ना, हमें सही तरीके से इस जुमले के ऊपर पाबंद भी बना, हमें सही तरीके से अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ठीक है। व इय्याका नस्तईन, व इय्याका नस्तईन, आगे इसके अंदर क्या है? ये इय्याका और ये वाला इय्याका वही वाला है। व इय्याका और खास तेरी ही, नून नस्तईन, हम, नून का मतलब क्या था? हम, आगे मतलब आ गई सीन। ठीक है, ये वाली सीन, इसका मतलब है तलब करते हैं। आगे ईन क्या है? मदद, हम आप की ही इबादत करते हैं और हम खास आप से ही मदद मांगते हैं। अब देखें क्या हम वाकई ऐसे करते हैं? हमारा जो यकीन है ना, हमारा जो ईमान है वो असबाब पे है। हालांकि असबाब पैदा कौन करते हैं? अल्लाह ताला की ज़ात पैदा करते हैं। हमारे पास अगर पैसे हैं ना, हम मार्केट जा रहे हैं तो हमें यकीन है कि भाई हम सारा कुछ खरीद लेंगे। और क्या है, अगर हमें यानी यकीन हमारे पास पैसे नहीं ना, तो हमें यकीन नहीं है कि हम कुछ भी खरीद पाएंगे। ठीक है, हम जाते ही नहीं है बाजार। लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने हमें जो चीज़ अता फरमाई है वो असबाब अता किए हैं, हम असबाब के मुताबिक चलते हैं। लेकिन फतवक्कल अला अल्लाह, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, भरोसा बहुत ज़रूरी है। और फिर क्या है? ईन, ईन के अंदर क्या है? मदद। जब हमने अल्लाह ताला से मदद मांगी, या अल्लाह पाक आपने हमें असबाब अता किए हैं, तो हम इन असबाब के साथ चलते हुए अपने मामलात को देखते हैं, तो फिर यहाँ तक की बस नहीं होती है। बल्कि बंदा कहता है, हम कहते हैं कि ऐ अल्लाह पाक, जब हम वाकई सच्ची में, जब हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला को अपना रब मानते हैं ना, सच्चे दिल से हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं ना, सच्चे दिल से जब हम अल्लाह ताला की यानी मदद चाहते हैं ना, तो फिर क्या होता है? हम कहते हैं कि अल्लाह पाक वाकई जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है ना, आपने ही हमारी मदद की है। जैसे हम कहते हैं वाइज़ा मरीज़तु फहुवा यशफी, और जब मैं बीमार होता हूँ वो मुझे शिफा अता फरमाता है। ऐसे ही है ना कि जब भी मैं बीमार होता हूँ मेरे शिफा कौन अता करते हैं? अल्लाह ताला की ज़ात शिफा अता करते हैं। और जब भी कभी मुझे यानी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैं कहती हूँ कि ऐ अल्लाह पाक मुझे रिज़्क़ की कुशादगी अता फरमा, तो मैं कहते हैं वरज़ुकना, हमें रिज़्क़ अता फरमा, वरज़ुकना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। ऐ अल्लाह, हमें आप बेहतर रिज़्क़ अता करिए, क्योंकि आप ही बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाले हैं। अब ये किससे मांगा हमने? अल्लाह ताला से खास मदद की मांगी है। हमने अल्लाह ताला से कहा वंसुरना व अंत खैरुन नासिरीन, खैरुन नासिरीन, यानी ऐ अल्लाह,
ہماری مدد فرمائیے، آپ بہترین مدد فرمانے والے ہیں. وانت خیر الناصرین، آپ بہترین مدد فرمانے والے ہیں. ہم نے اب قرآن پاک کے اندر کتنی آیات ہیں، جیسے ورحمنا، وانت خیر الراحمین. ہم پر رحم فرمائیے اور آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں. تو جب ہم یعنی ایسے بات کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ ہی یقین ہے، ہمارا صرف اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ ہے. وہی ہے ہمیں جو شفا عطا کرتا ہے، وہی ہے ہمیں جو رزق عطا کرتا ہے، وہی ہے ہمیں جو ہماری مدد فرماتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہیں، ہم جب اس سے مدد مانگتے ہیں وہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا ہے. ہم نے واقعی میں یقین کیا. کیوں؟ جب ہم نے دعا مانگی ہے تو ہم نے کیا کہا ہے؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. کہ اے میرے اللہ، میں نے جب بھی آپ سے دعا مانگی ہے نا، میں کبھی بھی ناامید یا مایوس نہیں ہوا، میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا ہے. مجھے ہمیشہ آپ نے یعنی اچھا ہی عطا کیا ہے. جو بھی مانگا آپ نے مجھے اس سے بڑھ کے عطا کیا ہے. زندگی کے اندر اگر ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دیکھتے لگے نا، تو یقیناً ہماری پوری کی پوری زندگی جو نا اس ایک جملے کے ارد گرد گھومتی رہے گی. کیونکہ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو یعنی عبد بندہ جو لفظ جو نا یہ بہت پسند ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ. ٹھیک ہے؟ اور جب کہ وہ کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اور وہ اس کو پکار رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو عبد یعنی اپنا بندہ کہنا بڑا اچھا لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کو عبد اللہ کہہ کے پکارا. ٹھیک ہے؟ ایک آیت یہ ہے. ایک اور دیکھیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہو گئی سمجھ لو ایک، یہ دو. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. یعنی تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. اب دیکھو یہ کتاب کوئی چھوٹی سی چیز تو نہیں نہ ہے. کتاب قرآن پاک اتنی عظیم و شان کلام ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑی کتاب ہے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا ہے. اور اس کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں اپنا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی عبد کا لفظ بولا ہے، جو کہ اس کو بہت ہی پیارا لگتا ہے. پھر ایک اور دیکھیں جگہ پہ کتنا بڑا مقام ہے، وہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد
मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। अब ये देखें, ये सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर अल्लाह ताला वो मेराज शरीफ वाला वाक़या जो है वो याद कर रहे हैं। अब किसी नबी को भी अल्लाह ताला ने जन्नत नहीं दिखाई, ऐसे जहन्नम नहीं दिखाई, अल्लाह ताला की आसमानों की सैरें नहीं करवाई, सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं लेके गए, और बुरात किसी के लिए नहीं भेजा अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने अपने प्यारे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी आसमानों से ऊपर लेके गए, सैर करवाई, सिदरतुल मुंतहा से आगे कहाँ कहाँ कहाँ, ये तो अल्लाह ताला जानते हैं कि जहाँ पे भी अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से लेके गए हैं तो क्या है कि उसके लिए भी अल्लाह ताला ने क्या सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई अपने बंदे को। यहाँ पे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, रात के वक्त, जो कि मस्जिद हराम से लेके कहाँ थे, मस्जिद अक्सा तक पहला उनका यानी स्टे था। पहला स्टे कहाँ था, मस्जिद अक्सा तक। तो आगे ये और भी बहुत सारी डिटेल है। मतलब मेरा कहने का है कि अबद अल्लाह ताला ने बड़े लाड से बोला है, बड़े मोहब्बत से बोला है, और अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने अपने लिए रब का लफ्ज़ बहुत ही पसंद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तो उसका ज़ाती नाम है ना, रब, रब यानी वो रब्बिल आलमीन है, वो पालने वाला है। सबसे पहले उसने रहमान और अर्रहीम इन दोनों नामों को उसने रखा। फिर उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पहले अल्लाह का नाम था, ये उसका ज़ाती नाम है, फिर रहमान, फिर रहीम, फिर उसने अपने रब होने का तारुफ करवाया, ठीक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इसके अंदर हम अपने यानी रब को, यानी जिसकी हम कह रहे हैं कि हम खास आपकी इबादत करते हैं, उसको रहमान भी मानते हैं, इसका वाले रब को हम रहीम भी मानते हैं, उसको अपना रब भी मानते हैं, उसको मालिकी यौमिद्दीन भी मानते हैं, ठीक है। ये सब कुछ है कि जैसे ही इंसान यानी इबादत करता है ना, तो इबादत के अंदर उसके क्या होता है, आजिज़ी होती है, खुशू होता है, खुजू होता है, उसके अंदर वो अपनी गुलामी का इजहार करता है। वो उसके अंदर क्या करता है, कहता है कि या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ। बंदगी, अपनी गुलामी, अपनी इताअत का यकीन दिलाता है, यकीन दिला। और अल्लाह ताला भी फिर पता है क्या करते हैं, अल्लाह ताला भी तो काम नहीं ना करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाया है, देखो कितनी बड़ी चीज है, या इबादी यल्लदीना असरफू असरफू अला अला अनफुसिहिम है मेरे वो वाले बंदे, मेरे मेरा एक ताल्लुक होता है, मेरा एक ताल्लुक होता है। ये फलां चीज मेरी है, ये मेरी है, ये मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरा शोहर, मेरे बच्चे, ये एक ताल्लुक है। अल्लाह कहते हैं ऐ मेरे वो वाले बंदो, ऐ मेरे वो वाले बंदो, असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों पे यानी इसराफ करके यानी अपने आप को नुकसान में डाल लिया है। तो क्या है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मिन रहमतिल्लाह, कि तुम अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो जाना। वो ऐ मेरे वो वाले बंदो जिन्होंने इसराफ किया है, जो हद से बढ़ गए हैं, और उन्होंने असरफू, उन्होंने ज्यादती की हैं, अपने नफ्सों पर इसराफ कर लिया उन्होंने। तो तुम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अपने रब की रहमत से नाउमीद ना हो जाना। तुम जब भी अल्लाह ताला को अपना मानोगे, उसके आगे शर्मिंदा होंगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात के अक़दस के आगे तुम क्या करना, तुम सिर्फ और सिर्फ आजिज़ी के साथ झुकते हुए तुम अस्तगफिरुल्लाह कहना,
استغفरुल्लाह जब आप कहोगे ना तो अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं मैं तो माफ़ करता ही करता हूँ। फिर क्या होता है कि हामिलिन अर्श यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना, वो बख्शिश तलब करते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान ले आए। वो कौन से हैं? यहमिलूनल अर्श, जो यहमिलूनल अर्श है, यहमिलूनल अर्श यानी जो अल्लाह ताला का अर्श उठाए हुए हैं। यहमिलूनल अर्श यानी जिन्होंने अल्लाह ताला का अर्श उठाया हुआ है, वो क्या करते हैं? वो फिर अल्लाह ताला के आगे दुआ करते हैं। यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, वो बख्शिश मांगते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान ले आए। मतलब क्या है? उनके दिल में ये बात है कि अगर हमने 100 साल भी खताएं की हैं ना, 100 साल भी गुनाह किए हैं, तो हमारा रब हमें माफ़ कर देगा। क्यों? हमने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी है। हमें अल्लाह ताला के अलावा कोई माफ़ कर ही नहीं सकता सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। ठीक है, तो अब इंसान जो है ना वो अल्लाह ताला से क्या कहता है कि ऐ पाक परवरदिगार, मेरा रिश्ता तेरे साथ एक इबादत का ही नहीं है, बल्कि मेरा तेरे साथ और भी मेरे तेरे साथ रिश्ते हैं। एक और रिश्ते की जो बात की है वो क्या की है? वो हम मदद मांगते हैं। हमारी मुश्किल में आप हमेशा हमारे काम आते हैं। सबसे बड़ा जो होता है ना यानी इंसान के लिए यानी मोहसिन जो होता है वो कौन होता है? वो वाला होता है जो इंसान के मुश्किल वक़्त में काम आता है। जो इंसान के मुश्किल वक़्त में काम आता है ना, वही इंसान का सबसे बड़ा मोहसिन होता है। और अल्लाह ताला हमारे कहाँ काम नहीं आते? अल्लाह ताला हमारे हमेशा काम आते हैं, हमेशा हमारी मदद करते हैं, हमेशा हमें मुश्किलों से बचाते हैं। और इसके लिए जो हम आपसे मदद मांगते हैं ना, उसके लिए अल्लाह ताला ने यानी रब्बाना से शुरू होने वाली 40 दुआएं हैं। इसको आप चाहिल रब्बाना भी कह सकते हो, चाहिल रब्बाना यानी 40 ऐसी दुआएं जो रब्बाना से शुरू होती हैं। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ यही नहीं है, अब रब्बाना के अलावा आऊज़ु बिल्लाह के साथ यानी पनाह मांगी जाती है। और अल्लाह ताला से जैसे रब्बना आतिना फी दुनिया, ऐसे और भी बहुत सारी दुआएं हैं जो हम अपने रब से मांगते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस हमें हमेशा अदा करते हैं। ये रिश्ता एक इबादत का यानी हमारा गुलामी का और हमारा आजिज़ी का, खुशू व खुजू का, हमें जो कुछ भी है ना हमें बनना अल्लाह के आगे बनना है। अब देखो सारी चीज़ों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो नीयत आती है। क्या हमारी नीयत ठीक है? जब हम इबादत कर रहे हैं हम बिल्कुल खालिस्तन कर रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम जो हमारे दिलो दिमाग में चल रहा है वही हम अपने हाथों से और वजूद से कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ठीक है ना, और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो समझ लें कि ये हमारा यानी कहने का फ़ायदा कोई नहीं है। और इंसान के लिए दुआ का तरीका अल्लाह ताला ने ये बताया है कि मेरे बंदे जब तू दुआ मांगे तो अपने अकेले लिए नहीं मांगना, बल्कि अब हम सब अल्लाह ताला माने सब के लिए मांगो। फिर अल्लाह ताला ने की ज़ात से फरमाया मेरे बंदे अब तू जल्दबाजी भी ना करना। ठीक है, अगर तूने मांगा है ना तो मांगने का तरीका पता क्या है? सबसे पहले मांगने का तरीका ये है कि अल्लाह की हमद बयान की जाए, हमदो सना बयान की जाए, हमदो सना बयान की जाए। ठीक है, जब हमदो सना बयान की जाएगी ना तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अल्लाह ताला से के आगे अपना मुतालबा रखना है। हमदो सना सबसे पहले अल्लाह ताला की हमदो सना बयान कीजिए। ठीक है, हमारे अमूमन जो लोग हैं ना जिनको कोई समझ नहीं है खास, वो क्या करते हैं? पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं, हालांकि सबसे पहले हमदो सना पढ़ी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ें, ठीक है, दुरूद पाक पढ़ के फिर अपनी दुआ मांगे, जो आपने मांगना है अल्लाह ताला से वो मांगे। ये बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले अल्लाह ताला की यानी हमदो सना बयान करें और उसके बाद दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद आप अपनी दुआ को अपनी ज़बान में, अपने अल्फाजों में, चाहे अरबी में जो दुआएं सिखाई हैं वो मांगी जाएं। और इसके लिए ये नहीं होता कि आप जल्दी जल्दी से अब दुआ मांगी तो कहें अब जल्दी जल्दी से पूरी भी हो जाए। उसकी खूबी ये है कि इंसान मुहज़्ज़ब तरीके से आजी के साथ अपने आप को वाकई ज़रूरतमंद साबित करे अल्लाह ताला के सामने। तो जैसे वो कहते थे ना कि जब इंसान
किसी से मांगता है ना तो वो इतनी मासूम शक्ल बना लेता है ना कि बेचारे देने वाले को ना तरस आ जाता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस भी फरमाते हैं कि मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरा कोई बंदा ना मुझसे मांगता है। नबी पाक ने फरमाया जब तुम दुआ मांगो ना तो रो पड़ा करो, अगर तुम्हें रोना नहीं आता तो कम अज़ कम रोने वाला चेहरा ही बना लिया करो, ठीक है। तो क्या है, अल्लाह ताला के मर्तबे, अल्लाह ताला की यानी एहसानात की खूबियाँ, इन चीज़ों को अपनी दुआओं में शामिल करें और फिर बताएं कि या पाक परवरदिगार हमारी ज़रूरियात आपके अलावा कोई पूरी कर ही नहीं सकता, सिर्फ आप ही हैं जो हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। फिर जब आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं ना, व इय्याका नस्तईन कहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई मेरा बंदा मेरी इबादत करता है, अगर मैं इसको नहीं दूंगा तो मैं किसको दूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा बंदा जब मुझसे हाथ उठा के दुआ मांगता है ना, मैं उसके हाथ खाली उठाऊं तो मुझे शर्म आती है। क्यों? ना देने का मामला तो उसके पास होता है ना कि जिसके पास कमी हो या जिसको देने से कम होने का अंदेशा हो, या जो इंसान किसी को देना ना चाहता हो। अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस तो हमेशा देना चाहते हैं, हमेशा ही देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मेरे बंदे मुझसे मांगे। जब हमने कहा ना कि अल्लाह खास तेरी हम इबादत करते हैं और हम यानी तेरे ही बंदे हैं तो तुझसे ही हम मदद चाहते हैं, तो अल्लाह ताला भी फिर कभी यानी इंसान को मायूस नहीं लौटाते हैं। तो यहाँ पे ही आज का सबक हम जो है वो बस करते हैं। तो साथ साथ अपनी दुआओं के अंदर अल्लाह ताला की नेमतों के ऊपर शुक्र भी अदा किया करें कि पाक परवरदिगार आपने हमें इतनी नेमतें अता फरमाई हैं, इतनी नेमतें अता फरमाई हैं कि अगर हम शुक्र अदा करने लगे तो हमारे पास शुक्र के अल्फाज नहीं हैं, थोड़े हैं हमारे पास। हमारी ज़बानों को इतनी तौफीक अता फरमा के हम तेरा शुक्र अदा कर सकें। और हमें अब अल्लाह पाक जी हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है, आप हमें ये भी अता कर दें, तो यकीनन आपकी दुआओं को कबूल होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह इलाहा इल्ला अमीन, हमारे पूरे उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान हैं सबकी मदद फरमाइए, सबके मसाइल का हल फरमा दीजिए। जो जो जहाँ जहाँ बैठे, जो जो उनके दिलों में, जिस किसी के भी दिल में कोई आरजू है ना वो पूरी फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।